Student, now we explain male reproductive organ. Male reproductive organ is related to the reproductive part of the male and different type of the structural part present in the male reproductive organ. Main part is the testis and many secondary and accessory part also present. So, we explain one by one. Male reproductive organ, at first we explain the primary sex organ. Primary sex organ. Students, you know primary sex organ is testes. Testes is plural because one pair of the testes present, but singular term is testes. If the testes is single, then it called the testes. But in general, the human being and mammals present one pair of the testes, so it called always testes, and their number is one pair. It is oval shaped and it is the primary sex organ because spermatogenesis completely happen inside testes in the region of seminiferous tubule. Now we explain what is exactly seminiferous tubule with the help of diagrammatic form. Second is secondary sex organ. Secondary sex organ. What is the secondary sex organ in male? At first, many secondary sex organ have to present. They support to development of the sperm and maintain the normal structural part of the testes and balancing form of the body activity also. So, secondary sex organ is epididymis at first, epididymis. It is very long structural form. It directly not participate to body balance, but it is generally testis present in between two thigh. So, if the size is increased, then it is very problematic and body is not fit. So, it supported indirectly in that balancing form. Second is vas deferens. It is the vas deferens. Third is urethra and fourth is penis. Penis is the male reproductive part, external point, and its penis is generally participate into the reproduction. So, these are the secondary sex organ in male. And third is some accessory sex organ, or you say that glands also present in male and they produce semen. In case of the sperm, when pass out through the ejaculation point, in that time semen mixed with, semen is a liquid part, and that liquid part when mixed with the sperm, then it called the semen. So, liquid part form with the help of these accessory organs or glands. One is known as prostate gland. Prostate gland only present in male, not in female. Seminal vesicle, or seminal glands, and Cowper's gland. Cowper's gland, or another name is bulbourethral gland. Bulbourethral glands. So, these are the gland and their secondary and accessory part in male reproductive organ. At first, testes. Students, you know testes present in between two thigh. So, it present in between two thigh. Testes present in external abdominal region. So, testes present in external
abdominal, or you say that external lower abdominal region, external lower abdominal region. Testes present outside body, so they maintain the temperature because spermatogenesis need 2 to 3 degree lower temperature in comparison to body. So testes maintain the lower temperature because it is outside in our body. But some exception in animal group, testes present inside abdomen. So exception, testes present inside abdominal cavity. So inside abdominal cavity testis presents. Examples is elephant, whale, armadillo, etc. In this animal group, testes present inside abdominal cavity. So these are the main point. Now we explain the at point primary sex organ, testes. So structure of human testes. Testis is the main reproductive part in male, and it is oval shaped, and at first we draw their structure and some accessory part and secondary part we also draw here, like the prostatic and seminal basically draw the separately, but here we draw the secondary part like the epidermis and vas deferens also. So testis, epidermis, vas deferens we draw here, and this is the structure of human testis. अब बच्चों देखो स्ट्रक्चर कैसा है. दिस इज द ओवल फॉर्म एट फर्स्ट. ये रियल टेस्टिस का पार्ट है और ये ओवल फॉर्म में है. इट्स ओवल टेस्टिस, इट्स द रियल पार्ट. अब इसको प्रोटेक्शन मिला है, बहुत सारे प्रोटेक्शन फॉर्म में है. एट फर्स्ट वी ड्रॉ द प्रोटेक्टिव लेयर, देन वी एक्सप्लेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस. अब देखो ये मस्कुलर पार्ट है और ये टेस्टिस को बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है. ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस को बाहर से जो प्रोटेक्शन दे रहा है, इसके डबल लेयर हैं, और डबल लेयर के फॉर्म में ये जो सबसे पहला लेयर है इसका नाम है ट्यूनिका वैजिनलिस. अब ट्यूनिका वैजिनलिस के पास दो लेयर हो गया, एक बाहर का लेयर हो गया, तो बाहर का हो गया पैराइटल मेम्ब्रेन, और एक अंदर का लेयर हो गया, अंदर का लेयर हो गया विसरल मेम्ब्रेन. तो पैराइटल एंड विसरल लेयर ये दोनों के दोनों कंबाइंड फॉर्म में ट्यूनिका एल्बोजिनिया को फॉर्म कर रहे हैं. सो ट्यूनिका एल्बोजिनिया इज आउटर membrane of testis. It is outer membrane because vaginalis name है, but ये है तो membrane ही, तो outer membrane of testis, और ये बाइलेयर के फॉर्म में है. क्लियर. दूसरा जो ये लेयर आप देख रहे हो, ये सेकंड लेयर है, एंड दिस सेकंड लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्बोजिनिया. और ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है ये मिडिल लेयर है. इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ टेस्टिस. इट इज़ मिडिल लेयर ऑफ टेस्टिस के मिडिल लेयर हो गए. और अंदर जो लेयर है बच्चों वो डॉटेड फॉर्म में है, वो जो है इस प्रकार से ट्रांसपेरेंट होता है. तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को डॉटेड फॉर्म में दिखाया जा रहा है, एंड दिस इज़ द थर्ड मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस. ये जो मेम्ब्रेन है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको मैं आगे बताऊंगा. एंड इनर जो मेम्ब्रेन है डॉटेड फॉर्म में, ये थर्ड मेम्ब्रेन पार्ट है, इसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा.
it is inner membrane of टेस्टिस। तो आपने देखा टेस्टिस के जो मेम्ब्रेन है वो 3 मेम्ब्रेनस फॉर्म में है। ट्यूनिका वेजिनलिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल मेम्ब्रेन मिडिल लेयर के फॉर्म में, एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा इनर मेम्ब्रेन के फॉर्म में इनर लेयर हो गया। अब इसके बीच में भी कुछ मसल्स होते हैं। इन दैट एरिया प्रेजेंट ए स्पेसिफिक मसल्स, यहाँ एक मसल्स है जो इसको राउंड फॉर्म में घेरा हुआ है, और ये जो है ये इसके बाद इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ तक दिखा रहा हूँ, ये पूरे में ही है टेस्टिस में। और एक मसल्स और है जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, वो सपोज थोड़ा ठीक दिखा रहा हूँ। ओके, अब देखो अब जो है थर्ड मेम्ब्रेन है मसल्स का, ये है यहाँ पर। ठीक है, रेड कलर में ये जो मसल्स है इसके भी स्पेसिफिक नेम है। इसका नाम है क्रीमैस्टर मसल्स एंड डेट्रोसर मसल्स। तो डेट्रोसर मसल्स जो मैंने येलो कलर में ड्रॉ किया है, और रेड कलर में जो आप मसल्स देख रहे हो इट नेम इज क्रीमैस्टर मसल्स, क्रीमैस्टर मसल्स। तो ये 2 टाइप के मसल्स है। क्रीमैस्टर मसल्स हैव टू अपलिफ्ट ऑफ द टेस्टिस अकॉर्डिंग टू नीड, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ऊपर ले जा सकते हैं। और जैसे ठंड के दिनों में बॉडी टेम्परेचर की नीड होती है टेस्टिस को, तो वो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर गर्मी के टाइम पे थोड़े नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो शिफ्टिंग में ये मसल्स हेल्प करते हैं। तो क्या क्या देखा? आउटर लेयर ट्यूनिका वेजिनलिस, इट इज़ 2 membranous पार्ट, विसरल एंड पैराइटल, इनर विसरल आउटर पैराइटल, एंड दिस आर कंबाइंडली नोन एज ट्यूनिका वेजिनलिस। एंड मिडिल जो लेयर है दैट नेम इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी ये जो मिडिल लेयर हो रहा है इट नेम इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एंड लोअर पार्ट सबसे इनर में ट्यूनिका वेस्कुलोसा, डॉटेड फॉर्म में बनाया मैंने, इट इज़ ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है। एंड 2 टाइप ऑफ मसल्स हैव टू प्रेजेंट हेयर, क्रीमैस्टर मसल्स एंड डेट्रोसर मसल्स। क्लियर? इसके बाहर स्किन है, स्किन के नीचे गुबर्निकुलम है, डेट्रोसर पॉइंट्स है, वो अलग से देखोगे, बट अभी जितना दिख रहा है इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ये देखो। अब देखो इसके अंदर, अब तक मैं बार बार आपको कह रहा था कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अब टेस्टिस के किस रीजन में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसको अच्छे से देख लो। इस रीजन पे ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर ऐसे जो आप पॉइंटेड फॉर्म देख रहे हो इट नेम इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही है। इसके नीचे और भी होंगे बहुत सारे, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट ऑल्सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और ये सभी जो पार्ट हैं ये बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, 600 to 750 तक हो सकते हैं, बट अभी यहाँ पर जितना बन रहे हैं 2-4 को मैं दिखा रहा हूँ। दीज आर इंटरकनेक्टेड, ये इंटरकनेक्टेड हो गए, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, और कनेक्शन के बाद ये आगे की ओर चले जाते हैं ऐसे। अब जब ये ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहे हैं, आगे की ओर जा रहा है, इस समय यहाँ पर हमें कुछ ट्यूब और दिख रहे हैं जो कट चुके हैं, और ये इस तरह के स्क्वायर फॉर्म में दिखते हैं। पूरा स्क्वायर तो नहीं होते हैं, बट स्लाइटली स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। और मान लो ऐसे कोई ट्यूब जा रहा था, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट गया, तो ये ट्यूब कटे हुए फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये ट्यूब जो है इस तरह से आपको दिख रहे हैं, और दिस इज़ कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस। ऐसे बहुत सारे कट ट्यूब है, एंड दिस ट्यूब्स आर रेटी टेस्टिस। ये ट्यूब के फॉर्म में ही है यहाँ पर। अब देखो इसको बाहर से प्रोटेक्शन मिल रहा है एक लेयर के फॉर्म में, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, और इसको इस तरह से टेस्टिकुलर लोब्यूल इसको घेरे हुए प्रोटेक्शन दे रहा है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, बिकॉज 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर हैव टू मेंटेन
here and this covering is called as testicular lobule. ये इस तरह से घेरा हुआ है, बस ऐसे। अब देखो ये जो बाहर का लेयर है, इस लेयर का नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इट्स नेम इज टेस्टिकुलर लोब्यूल और अनदर नेम इज लोब्यूल। सिंपल में लोब्यूल कह देते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल कह देते हैं। ये जो इनर रीजन पे सबसे मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ द टेस्टिस है, दैट नेम इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इट नेम इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट्स है। यहाँ से जो ट्यूब निकल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, दैट ट्यूब इज नोन एज सेप्टम। इस ट्यूब को सेप्टम कहते हैं, इट इज़ द सेप्टम। एंड जो कट फॉर्म में आपको ट्यूब दिख रहे हैं, इट्स नेम इज रेटी टेस्टिस। इट नेम इज रेटी टेस्टिस। ये हो गया टेस्टिस का स्ट्रक्चर। बट इस स्ट्रक्चर में एपिडाइमिस को दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में कनेक्शन होता है जो वैसा इफ्रेंसिया से होता है। सो वी ड्रॉ द एपिडाइमिस। अब मैं इस रीजन पे एपिडाइमिस को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड दीज आर द एपिडाइमिस एंड एपिडाइमिस इज 4 to 5 मीटर लॉन्ग, बहुत लंबे होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो इस एपिडाइमिस के पॉइंट्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फोल्डेड फॉर्म में होते हैं एंड एपिडाइमिस स्ट्रक्चरल प्रेजेंटली इन दैट रीजन। इस रीजन पे ये स्ट्रक्चरली प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ से जो है बहुत सारे ट्यूब ऐसे जा रहे हैं अंदर की तरफ और जा कर के ये कनेक्ट हो रहे हैं इस एपिडाइमिस से। तो ये जो कनेक्शन पॉइंट्स बना रहे हैं टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में, इसका नाम है वैसा इफ्रेंसिया। इट नेम इज़ वैसा इफ्रेंसिया और ये बहुत सारे ट्यूब के फॉर्म में है वैसा इफ्रेंसिया। और ये इस तरह से पॉइंट बनाने के बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये एपिडाइमिस है। एंड एपिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैपोट एपिडाइमिस फोल्डेड फॉर्म में, कॉर्पस एपिडाइमिस अपर रीजन पे, कॉडा एपिडाइमिस। सो एपिडाइमिस के ये 3 पॉइंट से पहले ये नाम लिख लेता हूँ, फिर इसके कनेक्शन पॉइंट को लिखूंगा। एपिडाइमिस के अपर पार्ट को बोलते हैं कैपोट एपिडाइमिस। इट इज़ नोन एज कैपोट एपिडाइमिस। ये जो फोल्डेड पार्ट है ऐसे, इट नेम इज कॉर्पस एपिडाइमिस। कॉर्पस एपिडाइमिस। और जो अपर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं इसका नाम है कैपोट कॉर्पस एंड कैपोट कॉडा एंड कॉर्पस एंड कॉडा। कॉडा एपिडाइमिस। So 3 region combinedly form the epidermis. So epidermis is combinedly formed by the caput epidermis, corpus epidermis and cauda epidermis. और ये कॉडा जहाँ खत्म होने के बाद जो आगे फोल्डेड फॉर्म में जो ट्यूब बन रहे हैं इसका नाम हो जाता है वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस। और आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसमें एक का नाम है एपिडाइमिस और दूसरा है वैस डिफरेंस। तो ये जो मैंने वैस डिफरेंस नाम लिखा है ये वही ट्यूब है जो कॉडा एपिडाइमिस के इंड पार्ट से अराइज हो रहे हैं। तो व्हेन कॉडा एपिडाइमिस हैव टू एंड, खत्म होगा इन दैट रीजन, द ट्यूब इज नोन एज वैस डिफरेंस। अब इसका नाम हो जाएगा वैस डिफरेंस। और ये जो कनेक्शन कर रहा है टेस्टिस और इस एपिडाइमिस के बीच में, इस कनेक्शन पॉइंट्स का नाम हो जाएगा वैसा इफ्रेंसिया। वैसा इफ्रेंसिया। सो द वैसा इफ्रेंसिया इज द कनेक्शन पार्ट ऑफ द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, और you know down the caput epididymis also you say, and these are the connection point. So when sperm form inside the seminiferous tubule, after that they passes through the septum, enter into the retitestis and finally enter into the vasa efferentia and release into the epididymis and here store
सम टाइम, और यहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं ये स्पर्म्स, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, फिर इजाकुलेशन में रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। सो इट इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ये कंप्लीट फॉर्म में है, इट इज़ अ कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन फॉर्म है। और इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं मेल के टेस्टिस के पार्ट्स में होते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ स्पेसिफाइड मसल्स जो है ये निकलकर इस और ऐसे ग्रो कर जाते हैं, ऐसे। अब ये जो मसल्स ऐसे ग्रो कर जाते हैं, इस मसल्स को यहाँ पर क्रीमैस्टर मसल्स के रीजन से और डेक्टोरस मसल्स के रीजन से ही निकलते हैं, और ये जो होते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के रूप में वर्क करते हैं, और इसे मेसोर्चियम बोलते हैं, एंड इट्स नेम इज मेसोर्चियम। मेसोर्चियम, मेसोर्चियम इज द फाइब्रस लेयर ऑफ, किसका फाइब्रस लेयर है? तो ये बाहर वाला लेयर कौन सा है? ट्यूनिका वेजिनलिस, इसका फाइब्रस लेयर है। इट द फाइब्रस लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनलिस, और इस जगह पे कनेक्ट है मेसोर्चियम, एंड मेसोर्चियम जो है पेरिटोनियल लेयर के रूप में वर्क करते हैं। इट इज़ नोन एज पेरिटोनियल लेयर, पेरिटोनियल लेयर के रूप में वर्क करते हैं, और इस रीजन पे ये पाए जाते हैं। तो वन नेम इज मेसोर्चियम, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने क्या क्या देखा इसको एक बार देख लो। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, कंप्लीट व्यू। इन दैट रीजन फाउंड मेनली 3 protective membrane, and that protective membrane protect testes. The outer membrane is known as tunica vaginalis. It is to 2 point. Outer is parietal, inner is visceral. So inner इसके कांटेक्ट में रहेगा एल्बुजिनिया के, और आउटर जो होगा स्किन के कांटेक्ट में रहेगा। मिडिल लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो पूरे में देख रहे हो टेस्टिस के अंदर, और इसमें ट्रांसपेरेंट जो लेयर देख रहे हो, ट्रांसपेरेंट लेयर का नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। सो दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के 3 मेम्ब्रेन पार्ट्स आपने देख लिए। अब देखो इसके बाद जब आप अंदर आते हो तो आप देखते हो कि इसमें जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है ह्यूमन बींग की अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के जो नंबर होते हैं, ये नंबर होते हैं 200 to 250. So 200 to 250 testicular lobules are the present. So these are the testicular lobule. अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखें, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दैट मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कवर्ड बाय टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्लियर है? अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो आप देख रहे हो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को समझो, ये जो है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे ये मान लो 1 2 3, यहाँ पर 3 है, बट आपको इस तरह से अगर दिखाया जाए तो आपको ये 1 दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिखाया जाए तो ये आपको 3 दिख रहा है, और इसको बाहर से किसी ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो बाहर से जिसने कवर किया है इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसको मैंने हटाया, अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल था, हट गया। इसके अंदर में 1 या 2 या 3 तक यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। सो inside one testicular lobule found maximum 3 seminiferous tubule and minimum 1 seminiferous tubule। अगर 1 होगा तो testicular lobule 200 या 250, तो seminiferous tubule भी 200 to 250 होगा। अगर 2 होगा तो seminiferous tubule का नंबर डबल कर दो, 400 से 500 होगा। अगर ये ट्रिपल होगा, मैक्सिमम 3 होगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, तो 600 to 750 होगा। तो मैं इसका मैक्सिमम नंबर लिख रहा हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होगा मैक्सिमम 600। सर 600 क्यों? क्योंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 200 है, तो 200 अगर है टेस्टिकुलर लोब्यूल तो एक के अंदर 3 अगर है तो 600 होगा। और इसमें मैक्सिमम जा सकता है 750। 750 क्यों सर? क्योंकि 250 तक अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल है तो 250 into 3 इज इक्वल टू 750, यानी मैक्सिमम 600 to 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नंबर होंगे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 600 to 750 के बीच में हो सकता है, और इसी के अंदर में स्पर्म बनते हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट इनसाइड दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
और ये टेम्परेचर को मेंटेन करना होगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करना होगा, तो कम करता है। और इसके बाद जब ये ट्यूब निकलते हैं बाहर की तरफ, इट्स नेम इज सेप्टम। सेप्टम जब आगे जाते हैं तो ये जो ट्यूब फॉर्म में होते हैं ये कट हो गया है, ये रियल में ट्यूब है, और ये ट्यूब का नाम है रेटी टेस्टिस। इट्स नेम इज रेटी टेस्टिस, इसका नाम है। और रेटी टेस्टिस जब आगे की ओर जाते हैं और एपिडाइमिस में एंटर करते हैं, यानी टेस्टिस से रेटी टेस्टिस निकल करके एपिडाइमिस की ओर जा रहे हैं, तो उस समय जो कनेक्शन पॉइंट बन रहा है बीच में, दैट नेम इज वैसा इफ्रेंसिया। दैट मीन्स वैसा इफ्रेंसिया इज कनेक्ट बिटवीन टेस्टिस एंड एपिडाइमिस। एपिडाइमिस और टेस्टिस के बीच में कनेक्शन बना रहा है कौन? वैसा इफ्रेंसिया। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो ट्यूब देख रहे हो, इट नेम इज एपिडाइमिस। एपिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अपर जो ब्रॉडर पार्ट है, इट नेम इज कैपोट एपिडाइमिस। राउंड फॉर्म में जो पार्ट है ये इसके तुलना में कम ब्रॉड है, इट नेम इज कॉर्पस एपिडाइमिस। और इसके बाद का जो ट्यूब है कॉडा एपिडाइमिस। और इसके बाद जो पॉइंट है वैस डिफरेंस है, और कॉडा एपिडाइमिस के रीजन से ही वैस डिफरेंस अराइज होते हैं। सो वैस डिफरेंस अराइज इन द रीजन ऑफ कॉडा एपिडाइमिस। और ये पूरे पॉइंट्स जो है यहाँ पर बताया है। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन पॉइंट पेरिटोनियल लेयर के रूप में मेसोर्चियम है, जो फाइब्रस लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इससे अगले क्लास में मैं आपको लिखाऊंगा। ओके। Students, now we explain the part of male reproductive organ, because in previous lecture we have to draw the diagrammatic part of the male reproductive system. Now we explain the part of male reproductive system and their organelle also explained here. You know, at first explain the introduction point. Say, you know, human testis is oval shaped. So human testis is oval. So testis is oval shaped. Second point, size. In general, we explain one testis, the size, the length is 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter. Third, weight. If we explain the weight of the single testis, that is near about 10 to maximum 25 gram. So 10 to 25 gram is the normal weight, and if the weight have to increase and dissimilar size in both the testes, then it called the hydrocele disease. Otherwise, testis is normal condition. Now we explain fourth is protective layers of testis. Students, you know, 3 protective layer present in testis: tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vasculosa. So at first the outer layer is called tunica vaginalis. Tunica vaginalis. Students, you know, this is suppose testis, and the outer part of this testis found a double membranous structure, and that structure is called as tunica vaginalis. So this is called as tunica vaginalis.
it is bilayered, and outer layer is called as parietal membrane and inner layer is called visceral membrane. Visceral membrane. So, two membrane formed tunica vaginalis. So, at first we explain tunica vaginalis is bilayered, that means two layered. It is outermost layer of testis, outermost layer of testis. Next point, students, you know, in female reproductive system, the female reproductive organ is known as vagina, and this type of term used here, it is vagina, vagina. Lis is added in that reason. So, sometime confused to student, vaginalis is the female covering. No, vaginalis is the layer of the male testis. So, it called vaginalis membrane. So, it's called vaginalis layer also. Tunica sometime not used. So, vaginalis layer is the tunica vaginalis. It is the male protective part of testis, not in the female. And function, so it main function to protection of testis and maintain normal shape of testis, maintain the normal shape of testis and maintain normal shape, its true function. Okay. Second layer is known as tunica albuginea. Students, its middle part is known as second layer and it is called as tunica albuginea. This tunica albuginea is the middle layer and whole part of the testis it have to surround. So, tunica albuginea, it is middle layer, of testis, surround whole testis, because this inner part is the real testis and it is the protective covering. So, complete testis have to surround with the help of tunica albuginea, and its function is to separation of the testis, because two testes have to present. So, separation of the testis, its function is to separation, or sometime one word is called partition of testis. So, left and right testes have to divided into two region, two part. So, partition of the testes with the help of tunica albuginea. And third layer, this is the third and innermost layer, and this is called as tunica vasculosa. Third layer is called as tunica vasculosa, inner layer. So, inner layer is tunica vasculosa. It is transparent layer, transparent. So, we draw the transparent form of the dotted line. It is transparent and innermost layer of testis, transparent innermost layer of testis. Now, second point is the muscles of testis. Which type of muscles present in testis? The muscles of testis. Students, you know, two type of the muscles present here. One is known as
dartus muscles, and other is known as cremaster muscles. So, two type of muscles present here, dartus muscles and cremaster muscles. So, mainly two type of muscles, one is known as dartus muscles and second is called as cremaster muscles. Two type of muscles are present. In the upper part of the dartus muscles found cremaster muscles. So, in the upper part of dartus muscles found cremaster muscles. So, cremaster found in the upper part of dartus. Second point, main function. You know, testes need 2 to 3 degree less temperature to form spermatogenesis and sperm formation. So, these muscles according to temperature they have to shifting the testes upward or downward. So, these muscles help to shifting of testes upward and downward according to need. जैसे ठंड का मौसम है, टेम्परेचर कम है तो बॉडी के एब्डोमिनल रीजन पे लेकर के एब्डोमिनल रीजन से कांटेक्ट करा देगा टेस्टिस को अप साइड में, यानी ये मसल्स बॉडी के साइड में चले गए एंड इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके टेस्टिस को एब्डोमिनल रीजन से कांटेक्ट कर दिए तो बॉडी टेम्परेचर इसको मिलने लगे और टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम हो गया, मेंटेन हो गया। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एटमॉस्फेयर का तो उस समय बॉडी से दूर ले जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट करा देगा, थोड़ा सा नीचे बॉडी से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन कराएगा। इससे क्या होगा कि इसके टेम्परेचर जो होते हैं बॉडी के टेम्परेचर एक्स्ट्रा जो पॉइंट है इसको नहीं मिलेंगे और ये अपने टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर मेंटेन करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मसल्स हैव टू मेनली मेंटेन द पोजीशन अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये था इसके पॉइंट्स मस्कुलर पॉइंट के रूप में। अब आते हैं इसके इनर पार्ट में। थर्ड पॉइंट्स, इंटरनल पार्ट ऑफ टेस्टिस। अब टेस्टिस के इंटरनल पार्ट में आप जानते हो वन स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट नेम इज सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। तो सपोज ये टेस्टिस है, इट इज ओवल शेप एंड अब मैं सिंपली ड्रॉ कर रहा हूँ टेस्टिस के पॉइंट, इसमें लेयर तो आप ड्रॉ कर चुके हो। दिस इज कॉल्ड एज seminiferous tubule. So these are the seminiferous tubule, they are interconnected. So interconnection form we have to draw here and these are the seminiferous part. Okay students, and upper part of the seminiferous tubule found testicular lobule. So these are the testicular lobule and in that region found a covering and that covering is called as testicular lobule. These are the septum and in that region found rete testes also, because when we cut the diagrammatic point then many type of the square or slightly square like structure have to present. This is really tubule and tube cut and that cut is known as rete testis. So here we found some structural point. This point is known as seminiferous tubule. Upper part of the seminiferous tubule found tunica, testicular lobule, not tunica, testicular lobule, and sometime it's also called as lobule. And this tube like part is known as septum. It's the septum part. This part is known as rete testis, cut of the tube. So cut of the tube is looking like slight square like structure and that square like structure is called as rete testis.
and really it is the tube. और इस सेप्टम रीजन से कुछ ट्यूब और अराइज होते हैं, ऐसे इस तरह से अराइज होकर के इससे पास जाकर के कंबाइंड होते हैं. सो ये जो ट्यूब होते हैं इसको जनरली सेमिनिफेरस केबल के ट्यूब रीजन से होता है तो ट्यूबली और रेक्टस तक जाता है रेटी, तो ट्यूबली रेक्टी कहते हैं. सो दिस कनेक्शन पॉइंट इज नोन एज ट्यूबली रेक्टी बिकॉज दिस ट्यूबली रेक्टी हैव टू कनेक्ट in between seminiferous tubule and rete testis. So rete testis and seminiferous tubule have to interconnected with the help of tubuli recti and tubuli recti present here. जो dotted line में मैंने आपको दिखाया है, it is a tubuli recti. तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं कई बार आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक में बता रहा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस complete inside seminiferous tubule. Student, these are the complete part of the testis. And we cut the transverse section, then we saw the seminiferous tubule. Seminiferous tubule is the main functional unit of the testis. So at first we write down seminiferous tubule. Student, this is the functional unit of testis. So seminiferous tubule, this is the functional unit of testis. It is the functional unit. Spermatogenesis complete inside this seminiferous tubular part. That means spermatogenesis have to complete inside seminiferous tubule. It's most important. But in general, any normal layman have to ask the question, spermatogenesis complete. So inside testis, it's the normal answer because seminiferous tubule is the detailed form and the real form. But if the really answer and really question arises like that, which region of the testis spermatogenesis have to complete? So seminiferous tubule is the region of the testis, here spermatogenesis complete. So two type of the answer, one is normal answer, spermatogenesis complete in testis, but real answer is inside testis found seminiferous tubule and here spermatogenesis have to complete. And this seminiferous tubule is bounded by testicular lobule. So second point is the testicular lobule. It is the membranous structure and they cover the seminiferous tubule. So seminiferous tubule is bounded by testicular lobule. So testicular lobule is the boundary of seminiferous tubule and they maintain the temperature. In general, we explain what is the process to this type of covering have to present. Now we try to explain and their number also. Suppose these are the seminiferous tubule and this seminiferous tubule found inside this testicular lobule. So upper part जो मैं प्लास्टिक के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, these are the testicular lobule. अब मैंने इसको हटाया, रिमूव किया. टेस्टिकुलर लोब्यूल रिमूव होते ही आपको मिल रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ से ट्यूब जो अराइज हो रहे हैं, दिस ट्यूब इज नोन एज सेप्टम. तो नीचे आप जो पतला सा ट्यूब देख रहे हो, इज आर द सेप्टम. अब याद रखना, वन टेस्टिकुलर लोब्यूल, ओनली वन की बात कर रहा हूँ. इनसाइड वन टेस्टिकुलर लोब्यूल फाउंड 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक हो सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में एक दिख रहा है, फिर ये 2 हो सकता है, या ऐसे 3 हो सकते हैं. मैक्सिमम 3 होंगे और मिनिमम 1 होंगे. दैट मीन्स 1 2 3. लेकिन एक बात याद रखना, ये तीनों इंटर पॉइंटेड कनेक्टेड फॉर्म में होंगे और तीनों के जो लोअर पार्ट होगा, लोअर पार्ट के जो सेप्टम होंगे वो सिंगल होंगे, सेप्टम 3 नहीं होंगे. दैट मीन्स दिस ट्यूब सेप्टम इज 1, बट इसके ऊपर ही एक
इसके ऊपर ही 2, इसके ऊपर ही 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इसमें अराइज हो रहे हैं। सो स्टूडेंट, आपने इस डायग्रामेटिक पॉइंट से ये समझ लिया होगा कि किस तरह से ये कनेक्टेड फॉर्म में हैं। तो दिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज मैक्सिमम 1 2 3 इन सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में होगा 1 से 3 इन नंबर, 1 2 3 इन नंबर। अब मैं इसको क्लियरली फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इन सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल in single testicular lobule inside part found 1 2 3 seminiferous tubule, seminiferous tubule। इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होगा वो 1 से 3 हो सकते हैं। तो देखो, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होंगे वो 1 से 3 होगा सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल में। अब हमारे पास जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं इन जनरल देयर नंबर इज 200 to 250। सो द नंबर ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल इन ह्यूमन बीइंग, सिंगल टेस्टिस की बात कर रहा हूँ, तो 200 to 250। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में इसके नंबर कितने हो जाएंगे? तो इसको मैं 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 इज़ मिनिमम एंड 1 इज़ मैक्सिमम। ये 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। मान लो कि एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होगा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, सपोज करो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल ने सराउंड कर रखा है एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को, तो इसके अंदर भी जो नंबर होंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के वो 200 to 250 होगा। क्लियर? अब मान लो मैक्सिमम बात करता हूँ कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 600 to 750। तो इसमें मैक्सिमम जो होगा 600 to 750 इसके नंबर हो सकते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कितने होंगे, तो 1 to 3। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया कि द नंबर ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्यूल इज 10, हाउ मैनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज मैक्सिमम, तो 10 है मान लो टेस्टिकुलर लोब्यूल, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से क्योंकि मैक्सिमम नंबर 3 होंगे, तो ये कितने होंगे 30। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन सकते हैं। मैक्सिमम टेस्टिकुलर लोब्यूल हमारे पास जो होंगे वो 200 to 250 होंगे, तो मैक्सिमम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होंगे वो 600 to 750 होंगे, और इसी के अंदर में स्पर्मेडेंसिस पूरा होगा। और मिनिमम अगर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है तो 200 to 250, अगर मतलब 2 है तो फिर 400 to 500। इस तरह के क्वेश्चंस के पॉइंट्स इसमें बन सकते हैं। तो ये था इसके पॉइंट। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ से निकलने वाले पॉइंट को सेप्टम कहते हैं। तो सेकंड टर्म इज सेप्टम। तो सेप्टम इज ए ट्यूब अराइज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, अराइज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रियली अराइज करेंगे। अब ये जो अगला पॉइंट है ट्यूबुलर रेक्टी, ये जनरली प्रीवियस लेक्चर में मैंने नहीं दिखाया था, बट ये आपको इसके अंदर होता है, तो इसको भी लिखें। सेकंड पॉइंट इज ट्यूबुलर रेक्टी। तो मैंने क्या कहा, ट्यूबुलर रेक्टी क्या करेगा? इट इज द कनेक्शन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, या सेप्टम भी कह सकते हो। तो डायरेक्ट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेन पार्ट तो यही है। तो ट्यूबुलर रेक्टी हैव द कनेक्शन बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड रेटी टेस्टिस। तो इट is also tube like, it is also tube like, and connection between seminiferous tubule, seminiferous tubule and reti testis, reti testis। तो seminiferous tubule और reti testis के कनेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट में आते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस क्या है? एक नहीं, बहुत सारे ट्यूब का ग्रुप है। दिस आर द ग्रुप ऑफ ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स। तो दिस आर द ग्रुप ऑफ ट्यूब्स इनसाइड टेस्टिस।
टेस्टिस के अंदर ये होंगे और ये स्क्वायर फॉर्म में दिख रहे हैं स्लाइटली। अब आगे देखो, अब अगर मैं इसके आगे इस तरह से एपिडाइमिस दैट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन उस पार्ट को ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो है इस पार्ट के अंदर आकर के, these आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इस पार्ट के अंदर आने के लिए रेडी टेस्टिस से कुछ पार्ट अराइज होकर आ रहे हैं और ये आकर के यहाँ पर खुल रहे हैं और ये जो पार्ट होते हैं ये दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन शो करते हैं टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में, एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वैसा इफ्रेंसिया एंड दिस इज कॉल्ड एज वैसा इफ्रेंसिया, वैसा इफ्रेंसिया। तो वैसा इफ्रेंसिया ऑल्सो द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस, बिकॉज ये पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस का है, तो द कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये पूरा स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस का है। एपिडिडाइमिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल पार्ट ऑफ द मेल, शो ये कनेक्शन बनाता है। तो आप लिख सकते हो वैसा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया कुछ जगहों पे ये वैस लिख देते हैं बट इज फुल नेम एंड रियल नेम इज वैसा इफ्रेंसिया, एंड वैसा इफ्रेंसिया इट इज ग्रुप ऑफ ट्यूब ऑल्सो, ये भी ट्यूब का ग्रुप है। कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस, टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में कनेक्शन बनाते हैं। अराइज इन द रीजन ऑफ, अराइज इन द रीजन ऑफ, किस रीजन से? तो रेटी टेस्टिस के रीजन से ही अराइज होते हैं। एंड इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कलेक्ट स्पर्म्स from testes and release inside epididymis, epididymis, और एपिडाइमिस के पास ला करके स्पर्म को छोड़ना। दैट मीन्स स्पर्म फॉर्म इनसाइड दिस रीजन एंड स्पर्म passes from septum, after that tubuli recti, after that retitestis to enter inside वैसा इफ्रेंसिया, एंड वैसा इफ्रेंसिया स्पर्म को इस रीजन पे रिलीज करते हैं और इस रीजन पे स्पर्म को लाने का काम जो है फाइनली अगर हम बात करें तो वैसा इफ्रेंसिया फाइनल पॉइंट पे इसे पहुंचाता है और इस रीजन से इस रीजन तक इसके पाथ होते हैं। अब हम सिंपल इसको ड्रॉ करेंगे अलग से कि भाई यहाँ तक सबने हमने देख लिया। अब हमें देखना है स्पेशली कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है, क्योंकि यही हमारा फंक्शनल यूनिट है। तो अगर ये फंक्शनल यूनिट है तो मेन यूनिट तो यही हो गया, इसी को देखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो स्टूडेंट्स ये आपने अभी तक देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसा दिख रहा है, इस तरह से। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको ऐसा दिख रहा है, रियल में ये क्या होता है, ये ऐसे राउंड फॉर्म में होते हैं बहुत सारे, ये राउंड फॉर्म में होंगे, फिर ये भी राउंड होंगे, ये भी राउंड होंगे, ये भी राउंड फॉर्म में होंगे, ये भी राउंड फॉर्म में होंगे, और इसके बीच बीच में भी कई राउंड फॉर्म होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। सो मैनी राउंड फॉर्म एक जैसे होंगे लेकिन इसमें छोटे बड़े दिख रहे हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बाद बाहर में आपको तो पता ही है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और एक खास बात, ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जैसे कि मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्म हियर, वो सब यहाँ बनेंगे। और इनके बीच बीच में इस रीजन पे कुछ सेल होगा जो मेल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही मेल हार्मोन रिलीज होते हैं। और ये जो बीच बीच में कुछ पॉइंट आप देख रहे हो, सेलुलर पॉइंट, इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को लीडिंग सेल कहते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड लीडिंग सेल। पिट्यूटरी ग्लैंड के फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH
ये इसे इंडिकेट करता है, इसे एक्साइट करता है। और ICSH इंटरसेल्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसे एक्साइट करता है और इस रीजन पे प्रोनेसिस होता है और इसके अलावा ये मेल हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इनको मैं अलग से कंप्लीट डायग्रामेटिक पार्ट में दिखाऊंगा, बट अभी आप समझना है किस तरह के गोल गोल स्ट्रक्चर में बन रहे हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके नंबर हो सकते हैं 1 से 3। और ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल, यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इसकी संख्या 1 से 3 हो सकता है। इट नेम इज टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये तो आप जानते ही हो जो ट्यूब जा रहा है इसका नाम है सेप्टम, और ये सेप्टम आगे जा कर के यहाँ पर छोटे से ट्यूब के फॉर्म में जिसका नाम ट्यूबल ट्रैक्टी है उसके होता हुआ रेटी टेस्टिस में एंटर कर रहा है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर। तो 1 मिनट में मैं इसे रिवाइज करा रहा हूँ, समझें। स्टूडेंट, द शेप इज ओवल, size 4 to 5 centimeter length and width 2 to 3 centimeter, weight 10 to 25 gram. It is 3 layer tunica vaginalis. It also called as vaginalis membrane or layer. Outermost layer, 2 protective membrane is present, parietal membrane and visceral membrane also. And second layer is known as tunica albuginea. It have to function as a separation of the testes. And third is the tunica vasculosa. And next is muscles. 2 type of muscles have to present, detrosor muscles and cremaster muscles, and they have to function shifting of the testes in up and low position. And internal part, these are the main structure of the testes. That name is seminiferous tubule. This is the functional unit of testes. Spermatogenesis complete here. This structure is surrounded by testicular lobule. In one testicular lobule found 1 to 3 seminiferous tubule. So maximum testicular lobule is 200 to 250. So maximum seminiferous tubule is 600 to 750. And this another part is called as the septum. The tube-like structure arises from seminiferous tubule is called as septum, and in that region the connection between seminiferous tubule and reti testis is a tube-like structure also present, that called as tubuli recti, and reti testis the group of the tubes, and finally vasa efferentia. Vasa efferentia is the connection between testis and epididymis, and in that part two sperm enter into the epididymis. And structure of the seminiferous tubule and their histological part we have to explain to the next point. So these are the structural part of human testis. Okay.